Anjali Gautam, and we have amidst us Mr. Ankur Tripathi. They are there with us for the Youth Connect program. Please give a huge round of applause. चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सति। ब्रह्म पुराण में वर्णित इस श्लोक के मुताबिक चैत्र मास के प्रथम दिन सूर्योदय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ओम भूर्भुवः स्वः स्वः संवत्सर अधिपति आयामि पूज्यामि च। ओम भूर्भुवः स्वः स्वः संवत्सर अधिपति आव्यामी पूज्यामी च। नए लक्ष्यों, नए उल्लास और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मिस अंजलि गौतम and Mr. Ankur Tripathi, warm greetings to you sir and ma'am for gracing the occasion. Warm greetings to Dr. Nand Kishore Garg, Founder, Chairman and Chief Advisor Mates, Shri Vineet Kumar Lohiya, Chairman Mates, Vice Chairman Mates, Shri Jagdish Mittal, Vice Chairman Mates, Shri S.P. Goyal, Joint General Secretary Mates, Shri Mohan Garg, Joint General Secretary Mates, Shri Ranish Gupta ji, and Revered Shri R.K. Gupta and Shri Atul Singhal ji. Along with all the other trust members present here, we would also like to extend our very warm welcome to Professor Vikram Bali, Director Mate, Professor Rajni Malhotra Dhikra, Director Mates, Professor S.S. Deswal, Dean Mate, Professor Sachin Gupta, Dean R&I, Professor Harbhajan Mansal, Dean Management, all the heads of department present here, dear colleagues and our learned and vivacious students. उत्सव है आज मेट का, वंदना है उषा की, साधना है नए गान की, एक चेतना है नव निर्माण की, एक अर्चना है सृजन भारती की। 19 मार्च 2026 यानी विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हिंदू नव वर्ष की पावन बेला में हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ आगाज आज के कार्यक्रम का। आज का कार्यक्रम समर्पित है यूथ कनेक्ट के माध्यम से युवा ऊर्जा, विचारों और संभावनाओं का उत्सव मनाने के लिए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का ऐतिहासिक वर्ष है ये। नवीन वर्ष के नवीन हर्ष का आगाज और युवा वर्ग का सानिध्य, इससे खूबसूरत लम्हा पल हमारे पास कौन सा हो सकता है। इसी सम्मिश्रण से आज का अवसर अत्यंत विशेष और प्रेरणादायी है। हिंदू नव वर्ष की नव चेतना, वंदे मातरम की राष्ट्रभक्ति और युवा ऊर्जा के उत्साह के साथ पुनः हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। नववर्ष के नव प्रभात में संवत 2083 के शुभारंभ पर अनुरोध माननीय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष मेट्स, श्री विनीत कुमार लोहिया, चेयरमैन मेट्स, मिस अंजलि गौतम, our youth icon for today's program, श्री अंकुर त्रिपाठी जी और अन्य गणमान्य अतिथियों से कि आप दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का आगाज करें। प्रभु के चरणों में समर्पित संकल्प, आस्था और विश्वास, requesting our dignitaries for the lamp lighting. दीप आस्था का, दीप विश्वास का, दीप आपसी सौहार्द का। युवा श्रोताओं को हम पुनः बताना चाहेंगे आज का दिन यशस्वी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा अपनी प्रजा को ऋण मुक्त कर विक्रम संवत के आरंभ का दिन है। आज का दिन शक्ति और भक्ति के 9 दिन यानी नवरात्र की स्थापना का पहला दिन। आज का दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के संस्थापक
डॉक्टर केशव बल्लीराम हेडगेवार का जन्म दिवस और आज मेट्स प्रांगण में इस दिन से जुड़ा है लॉन्च ऑफ विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम। The Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, through Mera Yuva Bharat, has launched Viksit Bharat Yuva Connect program in Delhi starting 9th March 2026. Today's program aims to strengthen mates' engagement with the national vision of Viksit Bharat for 2047. This Yuva Connect program has covered 274 universities and colleges across 22 states and union territories where 274 youth icons have interacted with students and mobilized nearly 20,000 youth. Building on this momentum, today the expanded Delhi phase is here at MADE. Today, an interactive session, dialogue and engagement activity has been planned and lined up to connect you, that is the youth, for today's India's development journey so that we can encourage our young participants as responsible nation builders. Time now for a sapling presentation. May I now request Dr. Nand Kishore Garg, Founder and Chief Advisor MADES, and Shri Vineet Kumar Lohia, Chairman MADES, to present sapling to Miss Anjali Gautam, our youth icon in today's program. I request once again, sir. These two icons of youth have been propagating the message of Government of India amongst the young college students. So kudos to their achievement, kudos to their spirit. They've also been felicitated with a memento from our college. So a huge round of applause. I think the Josh is very neat. On behalf of entire MADES fraternity, a very, very happy birthday, sir. आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, हर पल हर लम्हा प्रभु की अनुकंपा आप पर बरसती रहे। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते और आपका सानिध्य हमें भरपूर। Sir, requesting once again to, I think sir, आज आपको बैठे हैं। नवीन सृष्टि का नया विधान आज हो रहा, नवीन आसमां में विधान आज हो रहा, नवीन वर्ष में नवीन अभिनंदन आज हो रहा। So requesting once again you to present sapling to Shri Mohan Garg, Joint General Secretary MADES. We are following the order as the guests are being seated. We would also like to request Professor Rajiv Malhotra to be part of the felicitation ceremony. Thank you, ma'am, for raising the occasion. So I now request you to present sapling to Shri Rajneesh Gupta ji. We are following the sequence the way they are seated. नया वर्ष है, नया हर्ष है, नई सुबह है, नए लक्ष्य है। So I now request you to present sapling to Vice Chairman MADES, Shri S.V. Goyal. So we are following the order the way the contingent has been seated. नई खुशी है, नव उत्कर्ष है, नई मंजिलें, नया अर्थ है, स्वागत है आपका मान्यवर, स्वागत रहे दिल से। So requesting you once again to present sapling to Shri Atul Singhal ji. नव वर्ष के नव प्रभात में नव जीवन हो, नव गंतव्य, नव आह्लाद हो, नव चेतना, नव सृजन, नव प्रशस्त पथ हो। इसी कामना के साथ मुखरित हर पल हर लम्हा सर्व लक्ष्य वह भेदन करता है, ध्यान में जो अर्जुन होता है, ध्यान में जो अर्जुन होता है। इन पंक्तियों के साथ आभार उनका जिन्होंने अपनी निष्ठा, कर्मठता और सत्य संकल्प से इस संस्था को सींचा, पल्लवित किया, पुष्पित किया। अनुरोध हमारी संस्था की आद्य शक्ति, आधार शक्ति और आधार स्तंभ डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से किया पाएं और अपने शब्दों से सभा को संबोधित करें। The entire young fraternity from MADES is waiting to hear from you, sir. So over to you, sir. आप सबको विक्रम संवत 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सुखद संयोग है कि आज युवा कनेक्ट नए संवत्सर का प्रारंभ हमने सुबह यज्ञ से किया, आशीर्वाद दिए यज्ञ भगवान का, और
आप सबको आने वाला वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे और विश्व के अंदर जो भयंकर इस समय तनाव है, त्रासदी चल रही है, उन सब से हम मुक्त होकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हम सब के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और आज सुखद संयोग ये भी है कि संघ के संस्थापक 100 वर्ष पूर्व उनका जन्मदिन भी है और आज ही हमारे प्रतिपदा के दिन ही हमारे चेयरमैन साहब का भी जन्मदिन है। तो आज कई लोगों का समाज की स्थापना का है, सिंधी समाज में भी आज का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अनेकों चीजें, क्योंकि आज ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। कितना पहले की थी कि वो काल गणना यदि 1 अरब 92 करोड़ समथिंग हो तो आज के यूथ को लिखने में भी दिक्कत होगी और बोलने में भी दिक्कत होगी। तो हमारी कितनी पुरानी परंपरा है और आज ये युवा कनेक्ट में हमारे ये दोनों जो युवा आइकॉन के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, गौतम और त्रिपाठी, ये भी आपसे बातचीत करेंगे। मैं आपके सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और आने वाले जो एग्जामिनेशन वगैरह की सब शुरू हुई, रोज एग्जामिनेशन तो रोज ही होते हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, पूरा मिल के चले। और अटेंडेंस की जो इस देश में दिक्कत है, आज के दिन में इतना ही कहना चाहूँगा कि अटेंडेंस के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी की हैं कि वो किसी के हाथ में अटेंडेंस देना, बैठाना, बढ़ाना नहीं है। इसलिए दोनों डायरेक्टर को भी पूरी छूट है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और हमारे तक किसी को आना ना पड़े, कहना ना पड़े कि हमारे हाथ में, ना चेयरमैन के, मेरे या हमारे 200 ट्रस्टियों के हाथ में कुछ नहीं है। आप अपना भविष्य खुद तय करेंगे और भविष्य तय करने के लिए रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और जीवन के अंदर अनुशासन, ये पहली आवश्यकता है, उसको आप फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु पथ है, दर्शन है, दिशा है, गुरु लय है, छंद है, जीवन है। In any field of knowledge, practice and life, a teacher, a mentor is needed to help us grow more systematically. Thank you, sir, for always guiding us. दिलों में फागुन, दिशाओं में रुंझुन, हवाओं में मेहनत की गूंजे नई धुनें, गगन जिसको गाए हवाओं से सुन सुन, वही धुन मगन मन सभी गुनगुनाए। न धुन मतमानी हो, न कोई गमी हो, न मन में उदासी हो, न धन में कमी हो, साकार हो सब मधुर कल्पनाएं। इन्हीं कामनाओं, कल्पनाओं, संभावनाओं को लयबद्ध करता है अंतर्ध्वनि, The Classical Singing Society of Males, led by Dr. Sunil Goswami. अनुरोध लयबद्ध प्रस्तुति का अंतर्ध्वनि के छात्रों से कृपया जोरदार तालियों से इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। जोरदार तालियां। Vinayaka, Vinayaka,
बने, ऐसी भावना मेट्स परिवार की। We have been joined by Shri Jagdish Mittal ji, Vice Chairman Mates. May I request Professor Vikram Bali, Professor S.S. Deswal and Professor Sachin Gupta to present a sapling to the poet, enigmator and motivator. अपनी किस्मत का सूरज मैं खुद बनाऊंगा, अपनी मेहनत की स्याही से तकदीर मैं खुद बनाऊंगा. So for a beautiful picture on today's Yuva Connect, you have been the precursor of many Yuva Sangams. Therefore, this is the right opportunity to acknowledge you. उसे गुमा है मेरी उड़ान, कुछ कम है मुझे यकीन है. It's like Youth Connect provide a wonderful platform where young minds can interact, learn, and get inspired by individuals who have walked unique paths and gathered valuable experience. It's now my privilege to introduce our guest speaker for today, Miss Anjali Gautam. Miss Anjali Gautam is a dynamic and enthusiastic young professional who completed her Miss Anjali Gautam is a dynamic and enthusiastic young professional who completed her Bachelor of Business Administration (BBA) from College of Management Studies in Now. She has demonstrated wonderful and remarkable academic record. So once again, students, she is here with us. May you give her a huge round of applause, ma'am. Meanwhile, I request you to come here. At the same time, I'll use this window to felicitate two guests who are here. We have Mr. Anil Ji present amongst us. He is Uttari Vibhag Pracharak for RSS. May I request Professor Vikram Bali, Dr. S.S. Deswal, and Dean RNI, Professor Sachin Gupta, to felicitate Shri Anil Ji. At the same time, we would also like felicitation to be made to Shri Deepak Garg Ji, Sah Vibhag Karyavahak. They have been the pillars of support for RSS. RSS is known to connect with the young people. It's tremendous work energy. तिनका जोड़कर आशियां बन जाएगा. हम भी चले, तुम भी चलो, तो कारवां बन जाएगा. शक्ति है, संकल्प है, मन में ऊंची उड़ान है. That is what RSS does for all of us. Meanwhile, continuing with our introduction to this young professional who is here with us, Miss Anjali's stint as at Tata Consultancy Services has made her an amazingly capable communication professional. She's here with us to guide us, nurture us. Her session and presentation will be followed by question and answers session. Therefore, I will request all our students to pay attention to what this young lady has to say and speak to you. So the dialogue platform is open to you, ma'am. It's over to you. सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार. नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को. जो मंत्र कभी जंजीरें तोड़ने की हुंकार बना था, वही आज विकसित भारत 2047 की ललकार बना है. आदरणीय चेयरमैन सर, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे युवा साथी, मेरा नाम अंजलि गौतम है और मैं उत्तर प्रदेश की साहित्य एवं शौर्य की संगम स्थली उन्नाव से हूँ, जिसने भारत को साहित्य और आज़ादी के मतवाले भी दिए हैं. मैं भी आप लोगों की तरह एक युवा हूँ और आज भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के इस प्रांगण में आप सभी ऊर्जावान युवाओं के साथ इस गरिमामयी मंच पर उपस्थित होने का अवसर मिला है. मैं आभार व्यक्त करती हूँ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया. आज मैं आपको शब्दों की उस शक्ति से रूबरू कराऊंगी. जो कभी हमारे स्वाभिमान की प्रेरणा बना था और आज हमारे उज्जवल भविष्य का संकल्प बना हुआ है. वंदे मातरम. वंदे मातरम, द सिविलाइजेशन मंत्र फॉर अ विकसित भारत 2047. वंदे मातरम केवल स्याही से लिखा गया कोई एक गीत नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के रक्त बलिदान से लिया गया वो महामंत्र था जिसने एक सोए हुए राष्ट्र को जगाया था. और अब यही संकल्प हमारे विकसित
भारत 2047 का निर्माण 2047 के शिखर की ओर लेके जा रहा है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और 1882 में यह पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ से प्रकाशित हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव और हमारी क्या किया हम यहाँ पे क्यों है और हमारे उद्देश्य क्या है। तो विकसित भारत वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र था जो स्वतंत्रता आंदोलन की वह सांस्कृतिक शक्ति थी जिसने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक एक बिखरे हुए भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। यह गीत हमारी सभ्यता के विचार को दर्शाता है। जब हम अपनी धरती को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पवित्र माँ मानते हैं तो यही भावना हमें पीढ़ियों से गर्व महसूस कराती आई है। आज हम आजादी के 100वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो यह गीत हमारे आत्मसम्मान का साहस बना हुआ है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, आज की संसद इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि कभी जेलों और फांसी के तख्तों पर भी वंदे मातरम गूंजा था। The origin of वंदे मातरम, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कोई भी क्रांति तब जन्म लेती है जब उसके आत्मसम्मान को चुनौती दी जाती है। कल्पना कीजिए 1870 के उस दौर की जब ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा था, लोग अपनी पहचान भूल रहे थे। ऐसे अंधेरे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम चलती है और एक ऐसा मंत्र निकलता है जिसने लाखों भारतीयों को फांसी के फंदों पर भी मुस्कुराने की ताकत दी थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य गॉड सेव द क्वीन को हमारे लिए एक अनिवार्य गार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको एक गहरी साजिश के रूप में देखा था। यह हमारी भारतीयता पर सीधा प्रहार था। तो उन्होंने इस गीत की रचना इस वंदे मातरम की रचना केवल एक गीत के रूप में नहीं बल्कि उनको एक सीधी चुनौती दी थी ब्रिटिश साम्राज्य को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था गॉड सेव द क्वीन, ऐसे समय में बंकिम दा ने चुनौती दी थी और वंदे मातरम का जन्म हुआ था। द जर्नी ऑफ वंदे मातरम। कोई भी विचार रातों रात बड़ा नहीं होता है। वंदे मातरम 150 सालों का यह हमारा संकल्प की कहानी है। आइए देखते हैं 1875 से अब तक कैसे यह हमारा स्वर बना हुआ है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई जब बंकिम चंद्र ने इन अमर शब्दों को कागज पर उतारा था, जिसने हमारे भारत के भाग्य को बदला। इसका असली जादू तब दिखा जब 1905 में बंगाल में विभाजन के समय कोलकाता की गलियों में यह गीत गूंजा था। यह केवल एक स्वर नहीं था बल्कि यह इंकलाब की आहट थी। तो यदि हम इतिहास के पन्ने पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्तों पर भी वंदे मातरम का जयघोष किया था। यह उनकी प्रेरणा और साहस का प्रतीक था। इतना ही नहीं, इस वंदे मातरम इस गीत की राह आसान नहीं थी। 1937 के टाइम पे इसके लिए एक राजनीतिक प्रस्ताव आया था, जो कि इसके कुछ हिस्सों को हटाने का प्रस्ताव आया था। इतना ही नहीं, 1975 से 1977 तक उन काले दिनों को याद कीजिए जब लोकतंत्र की आवाज के साथ साथ गीत के देशभक्ति संदेश को भी दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यही तो इस गीत की अज्ञेय भावना है कि इसे जितनी बार दबाया गया यह उतनी ही बार उभर कर आया। 1950 में इसे सार्वजनिक सम्मान मिला। आज वर्तमान सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी उत्सव मना रही है। यह हमारी सांस्कृतिक प्रतीक है। मतलब जो विचार सत्य और राष्ट्रभक्ति पर आधारित होता है उसे न कोई हुकूमत मिटा सकती है और न कोई राजनीति। वंदे मातरम कल हमारा संघर्ष था, आज हमारी शक्ति है और विकसित भारत में यही हमारी सिद्धि होगा। More than freedom, spiritual identity. पश्चिमी देशों में राष्ट्र अक्सर केवल एक नक्शा होता है। नक्शा यानी संधियों और सीमाओं की
नियमों से बनी एक जमीन। नक्शा हमें यह बताता है कि हमारी हद कहाँ खत्म होती है, लेकिन भारत की अवधारणा राष्ट्र को एक जीवंत और आध्यात्मिक इकाई के रूप में देखती है। हम खुद को सिर्फ इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, बल्कि हम खुद को इस भारत माता की संतान मानते हैं। हमारी भारत माता का स्वतंत्र 3 शक्तियों का संगम है, वेल्थ, विजडम, पावर। धर्म माँ लक्ष्मी के रूप में, ज्ञान माँ सरस्वती के रूप में, शक्ति माँ दुर्गा के रूप में। यह विचार नया नहीं है, यह हमारे वेदों में भी कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी, अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यही वो आध्यात्मिक ज्ञान है जो वंदे मातरम को एक गीत से अलग करके एक सभ्यतागत मंत्र बनाता है। अब एक नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, एक राष्ट्र को गुलाम बनाने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? सबसे आसान तरीका यह है कि उसे यह यकीन दिला देना कि वो खुद पर राज नहीं कर सकता है। उसे यह दिखा देना कि वो बहुत कमजोर है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हमारे साथ ठीक यही किया गया था। अब स्लाइड के एक हिस्से को देखिए जिसमें एक ऐसा चित्रण है जिसने हमें आलसी, कमजोर और पराजित मान लिया था। अंग्रेजों ने हमें यह यकीन ही दिला दिया कि हम राज करने के काबिल नहीं है। लेकिन आप दूसरी तस्वीर को देखिए, तिरंगे के नीचे लाखों भारतीयों का सैलाब। यह बदलाव कैसे आया? ये हमारी मानसिकता पर जोर था। अपने पारक में